Good morning to all. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel and your mathematics teacher. And in this video, just we are going to discuss the various questions and various problems from the area of the bounded region by using the definite integral. Okay, and that is the application of the integration chapter. Okay, so this chapter is very important for the JEE main and advanced level exams. So in this video, just we are going to discuss and we are going to solve different types of questions for JEE mains and advanced level exams. Okay, so those who are interested to join the classes as well, just they can join the classes and they can actually this view the channel as well, and they can view the lectures which were uploaded the previous time, and just you can join the classes. And if you like my videos, if you like my lectures, then please subscribe, like and share with everyone. Okay, so actually I'm not getting too much support from the external sources. Okay, just I want to share some views with you. I'm not getting the support from my friends and from my this colleagues. So whoever it is, just I need a very good support from my students as well. Okay, so as I told you that without the students support, teachers are nothing, and without the teachers, students are nothing. So both these two communities are interrelated to each other. Okay, so I need moral support from you also, and without your support this channel can't be shined. Okay, so if you have if you are getting the knowledge, if you are gathering the knowledge from my lectures, from my videos, please subscribe, like and share. And if you like my videos, just give me a like button also. Okay, give me a like also. Okay, and those who didn't subscribe my channel, please subscribe my channel, and for the better experiencing. Okay, and in the nearest future I am going to discuss various types of questions and various solutions and various concepts regarding the 11th and 12th studies. And very soon just I am going to start the 9th and 10th level mathematics also, and for the college level exam, for the college level studies, just I will start the lectures as well. Okay, because I have no book, and actually this I'm stuck in my home actually. So that's why just I have no book here, I have no materials here, and that's why just actually just I'm collecting the questions I'm from the net. And there is a, and there for that actually this 9th and 10th level and the college level mathematics can't be uploaded right now. So after this lockdown, just I'm giving you the assurance that from my channel you will get the too much support from my side in my subject actually, that means the mathematics subject. Okay, so I need your support. Okay, so today we are going to discuss the various questions from the JEE main in advance. Okay, so just write the first question here. Just write the first question. Just write the first question. Find the area of bounded region by the curves y equals to sine inverse x, and y equals to cos inverse x and x-axis. Okay, this is very important question. So I think in 2018 this question came. Okay, in JEE main exam. So in this lecture, just we are going to solve some extraordinary questions. Okay, so be prepared for getting the solutions and for getting the, and if you have some doubt regarding these classes, just you can ask me any question in the comment box. Just I will try to actually to make you clear about the lectures and about the different questions as well. Okay, so just right here,
साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों का ग्राफ जो है आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 होता है, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π to π होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ करने के लिए, देखो यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। पहले तो यहां पर लिखो गिवन y equals to sin inverse x, so that is x equals to sin y, x equals to sin y equals to cos inverse x, that means x equals to cos y। तो यहां पर देखो इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये काम करते हैं यहां पर ड्रॉ करने से। देखो यहां पर π/6, π/4, π/3 एंड π/2, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर हाफ, देन 1/√2, देन 1, ठीक है। तो अब जो है यहां पर आओ, इस कर्व में आते हैं, इसका फिगर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सपोज y का वैल्यू 0 पुट करने से, y का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 अगर मैं पुट करूं, x का वैल्यू क्या निकलता है, 0 निकलता है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो कर्व है वो ऑब्वियसली 0,0 पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर ऐसे ही y का डिफरेंट वैल्यू चूज करते रहिए, y का वैल्यू 0 पुट करना है तो x का वैल्यू 0 निकल गया, y का वैल्यू यहाँ पर π/6 पुट करो, x का वैल्यू कुछ निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ पर π/4 पुट करो, x का वैल्यू कुछ मिलेगा। ऐसे करते करते y का वैल्यू अगर मैं π/2 पुट करूं, sin π/2, x का वैल्यू क्या निकलता है, 1 निकलता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फिगर है ऑब्वियसली ये 0,0 पॉइंट से तो पास होगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू भी 0 निकलता है। दैट मीन्स फिगर जो है कुछ ऐसा निकलेगा, साइन इनवर्स x का। दैट मीन्स ये जो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का फिगर है कि नहीं। फिर उसके बाद यहां पर अगर आओ, y का वैल्यू 0 पुट करने से, y का वैल्यू 0 पुट करने से x का वैल्यू क्या निकलता है, 1 निकलता है। दैट मीन्स यहां पर पॉइंट क्या निकलता है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, दैट मीन्स ये 1,0 पॉइंट है कि नहीं। तो 1,0 पॉइंट से ये जो कर्व है वो पास करेगा, ये तो कंफर्म है। तो ऐसे करते करते y का वैल्यू पुट करते रहो, y का वैल्यू लास्ट हाइस्ट तक हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू π/2 पुट करें, cos π/2 0 होता है ना। तो अगर यहाँ पर y का वैल्यू π/2 पुट करने से x का वैल्यू 0 निकलता है, तो x का वैल्यू कब 0 निकलता है, जब कोई भी कार y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तभी तो x का वैल्यू 0 निकलता है। दैट मीन्स y का वैल्यू π/2 पुट करने से x का वैल्यू 0 निकलता है। दैट मीन्स यहां से ये जो कार जो है वो निकलेगा, है कि नहीं। ऐसे आके यहां पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो y के वैल्यू 0 पुट करने से x इक्वल्स टू 1 निकलता है। दैट मीन्स 1,0 पॉइंट में टच करेगा। तो ऐसे ही आपको फिगर यहां पर ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखो ये हो गया आपका शेडेड पोर्शन, ये हो गया आपका क्या, शेडेड पोर्शन, है कि नहीं। तो ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को निकालना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। दो इक्वेशन में हम लोग देखो यहां पर दोनों ही y का वैल्यू है। देखो तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, दोनों ही तो यहां पर वैल्यू है ना ये y का, तो दोनों की इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 मतलब tan इनवर्स क्या होता है, 1 मतलब, एक काम करते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x को फ्रॉम द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स x को ऐसे लेंगे तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, है कि नहीं। सो दैट मीन्स साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या निकलता है, 1/√2। दैट मीन्स ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है
यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं 1/√2 पुट करूं, y का वैल्यू कुछ निकलता है यहाँ पर है 1/√2 अगर तो π/4 निकलता है कि नहीं। दैट मींस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1/√2, π/4। तो यहां से एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/√2, 0 है कि नहीं। तो यहां पर जो एरिया होगा ये शेडेड पोर्शन का एरिया दिखाई तो दे रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम दे दो ओ ए, इसका नाम ओ, ये बी, ये सी, ठीक है। तो लिखो हियर द एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इक्वल्स तो टोटल एरिया जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट तो है 0 to 1/√2, एक पार्ट ये पार्ट, ठीक है। इस पार्ट में कौन सा कार्व यूज हो रहा है, ये वाला कार्व यूज हो रहा है। ये वाला कार्व मतलब कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, दैट मींस साइन इनवर्स एक्स dx प्लस 1/√2 टू कहां तक 1 तक आएगा cos इनवर्स एक्स dx। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही है, 1 बाई साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स का यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन में तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0 to 1/√2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर भी 1/√2 to 1 cos इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। u इंटू भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ये u ये v, दैट मींस साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx प्लस cos इनवर्स x का भी सेम ही होगा, cos इनवर्स x 1 dx माइनस ddx ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx। लिमिट तो है ही, ये 0 to 1/√2, यहाँ पर 1/√2 to 1, लिमिट तो है। पूरा आंसर निकाल के लास्ट में हम लोग लिमिट बिठा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये होगा x साइन इनवर्स x माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स x मीन्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x dx प्लस cos इनवर्स x इंटू x, ये x cos इनवर्स x होगा, फिर माइनस ddx ऑफ cos इनवर्स x मीन्स क्या होगा माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x dx, है कि नहीं। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, तो यहां पर होगा x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो एक पार्ट है कि नहीं। फिर दूसरा पार्ट है x cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट अलग अलग है ना, इसलिए दो पार्ट अलग अलग करना पड़ेगा यहाँ पर। इस पार्ट में इंटीग्रेशन तो ये है, इसमें तो और कुछ नहीं है। एक काम करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z ले लेते हैं या फिर z स्क्वायर ले लेते हैं, अच्छा होगा, क्योंकि रूट के अंदर का कोई भी टर्म आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो स्क्वायर रिलेटेड ही करना है। दैट मींस 1 माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2z dz, 2 कैंसिल, दैट मींस माइनस x dx इक्वल्स टू z dz, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्लस देके यहाँ पर माइनस दे देते हैं ना, वहां पर भी तो सेम है। यहाँ पर तो एक काम करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर ले लो, तो दैट मींस माइनस x dx इक्वल्स टू p dp। तो एक काम करते हैं, इसको ये माइनस और ये माइनस ऐसे दे देते हैं, है कि नहीं। तो बस तो क्या बना x साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया z dz बाई, ऊपर क्या आएगा z dz, x dx की जगह में z dz बाई z प्लस x cos इनवर्स x, ये भी माइनस
इंटीग्रेशन पी डीपी बाई पी। तो यहां पर देखो जेड जेड कैंसिल, यहां पर पी पी कैंसिल। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन डीजेड मीन्स जेड। यहां पर लिमिट क्या था 0 टू 1/√2 है कि नहीं, 0 टू 1/√2 और प्लस इसका क्या है एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस पी, इसमें भी 1/√2 to 1। बस उसका कैलकुलेशन अभी कर लो, है कि नहीं। तो यहां पर x साइन इनवर्स x प्लस जेड, जेड हम लोगों ने क्या लिया था ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस लिमिट है 0 टू 1/√2 बिठाओ, और इधर x कॉस इनवर्स x p मतलब यही है 1 बाई दिस, बट यहां पर लिमिट थोड़ा चेंज होगा 1/√2 to 1। बस इसमें लिमिट बिठाओ, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, आंसर मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, हो गया, आ जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। Find the area of the region bounded by the curves. Just find the area of the region bounded by the curves। दो कर्व दिया गया है आपको। Find the area of the region bounded by the curves। Find the area of the region bounded by the कर्व्स। दो कर्व दिया गया है, ठीक है। पहला कर्व जो है x इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर, और दूसरा कर्व है x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर, 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ तो यहां पर गिवन कर्व्स एक एक करके लिखो। गिवन कर्व x इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इधर x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, मैंने बोला था, आई टोल्ड यू इफ यू हैव द टू वेरिएबल इन वन पर्टिकुलर इक्वेशन एंड apart from that if you have the square expression only on one variable, then this equation will be the parabolic equation। so I think this is the parabolic equation। y के ऊपर स्क्वायर x के ऊपर नहीं है, और दो टर्म है, दैट मीन्स वर्टेक्स तो यहाँ पर 0 0 ही होगा, है कि नहीं। यहाँ पर 3 टर्म है, दैट मीन्स वर्टेक्स यहाँ पर 0 0 नहीं होगा, अल्फा कोमा बीटा होगा। फर्स्ट लेक्चर देखो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2, that is y square equals to minus 4 into 1 by 8 into x। that means यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर वर्टेक्स होता है 0,0, ये तो श्योर है। y square equals to minus 4ax। फोकस पॉइंट क्या होगा, ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, माइनस साइन है, that means नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, that means माइनस a,0 होगा फोकस पॉइंट। a क्या है यहाँ पर 1/8 माइनस 1/8,0 फोकस पॉइंट। यहां पर ये क्या है, यहां पर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1। सो दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/3 x माइनस 1। दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू 1/12 इंटू x माइनस 1, है कि नहीं। माइनस 3y स्क्वायर वन साइड हो गया, ठीक है, x माइनस 1। सो दैट मीन्स y माइनस 0 whole square equals to minus 4 into 1/12 into x minus 1। तो यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा 1 बीटा 0 1,0। फोकस पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है
फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, ये सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस होता है, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट वर्टेक्स यहाँ पर 0 0 नहीं है, वर्टेक्स यहाँ पर अल्फा कमा बीटा है, ये केस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये इसे डिस्कस किया था। -a that means -1/12 plus alpha that is 1 and 0 plus beta that means 0, that is -11/12 comma 0, -11/12 0। that means यहां पर देखो दोनों का ही वर्टेक्स फोकस मिल गया आपको, है कि नहीं। अब जो फिगर अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, फर्स्ट वाला फिगर देखो 0,0 वर्टेक्स है और सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दैट मींस ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड जो है, फिगर ड्रॉ करने से पहले हम लोग को तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है ना। सॉल्विंग 1 and 2 करके देखो, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, तो -2y² और 1 - 3y², दैट मीन्स -2y² plus 3y² equals to 1, that means y² equals to 1, that is y equals to ±1, ठीक है। अगर यहां पर y ±1 होता है तो x equals to +1 होने से क्या होता है, +1 होने से तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या होता है, -2 ही होता है, और -1 होने से भी y² है, -1 होने से भी -2 ही होता है। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर लिखो, सिंस y इक्वल्स टू +-1, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दो निकलता है, एक -2,1 एक एंड -2,-1। देखो x का वैल्यू तो -2 ही निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ पर +1 लो या फिर -1 लो, बिकॉज यू हैव दिस y²। +1 पुट करो, -1 पुट करो, देखो -2 ही निकलेगा x का वैल्यू। इट मींस दो पॉइंट्स निकल गया, -2,1 एंड -2,-1। अब ये फिगर में आओ, इसमें वर्टेक्स कौन सा है, 1,0, तो यहां पर होगा आसपास 1,0, डायरेक्शन तो इस तरफ ही होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ठीक है, ऐसा होता है फिगर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो मिला, एक है ये -2,1 और ये एक है -2,-1, है कि नहीं। तो यहां पर शेडेड पोर्शन क्या निकल गया, ये है आपका शेडेड पोर्शन, ये भी और ये भी, है कि नहीं। अच्छा यहां पर देखो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो है। और उसके ऊपर जो है देखो, ये जो है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ गया, नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ गया ना, आ गया कि नहीं। तो यहां पर देखो हम लोग को देखो नाम दे दो शेडेड पोर्शन का, एक नाम दे दो, एक नाम दे दो शेडेड पोर्शन का। ये तो है x इक्वल्स टू -2y², है कि नहीं, x इक्वल्स टू -2y², और ये जो कर्व है ये x इक्वल्स टू 1 - 3y², है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो यहां पर एक काम करते हैं, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो हम लोग को सॉल्व करना है, ये तो श्योर है। यहां पर देखो जो शेडेड पोर्शन है पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू हुआ है, नेगेटिव x एक्सिस में आ गया है। तो जब ऐसा केस आए, ठीक है, तब आपको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको करना है कि नहीं। ये काम करते हैं,
वाई एक्सिस के साथ पैरेलल करके एक ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर तो y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, -2,0 है कि नहीं। देखो तो इस पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस सेम ही है, सिर्फ माइनस साइन दिया गया, लेंथ तो सेम होता है ना। तो एक काम ये करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर एक नाम दे दो, ए ओ बी सी डी। तो यहां पर लिखो हियर एरिया ऑफ ए ओ सी डी ए, इसका एरिया निकाल रहे हैं। देखते हैं शेडेड पोर्शन का। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले हम लोग ये जो है ना, ये पूरा इसका ये पूरा निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा जो है उसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ए डी सी बी ए। इससे माइनस करेंगे कौन सा, ये छोटा वाला है। छोटा वाला का नाम क्या है, देखो ओ डी सी ओ, गैप वाला, ये पूरा इसका निकालेंगे, उसे गैप पोर्शन माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो दैट मीन्स y का लिमिट यहां पर क्या है, 0 to 1, 0 to 1, है कि नहीं। 0 to 1 बड़ा वाला जो है उसमें कौन सा कर्व यूज हो रहा है, ये वाला पोर्शन यूज हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, कौन सा वाला है, सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन है ना, है। तो यहां पर जब तुम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब करते हो तो x dy होता है ना, x dy होता है x1 माइनस 0 to 1, जो छोटा वाला जो है उसमें कौन सा कर्व यूज हो रहा है, ये माइनस, ये x2 नाम देते हैं, x2 dy। दैट मीन्स 0 to 1 ये होता है 1 माइनस 3y² dy माइनस 0 to 1 माइनस 2y² dy, है कि नहीं। बस ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। फिर y माइनस 3 इंटू वाई क्यूब बाई 3, 0 to 1, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू वाई क्यूब बाई 3, 0 to 1। वैल्यू बिठा दो, आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 1 पुट करने से 1 माइनस 1, क्या करें, 1 माइनस 1, देखो 1 पुट करने से 1 माइनस 1 क्यूब 1 होता है, और 0 तो पुट नहीं करेंगे। यहां पर प्लस 2/3 तो है, 1 क्यूब है, और 0 तो पुट नहीं करेंगे। तो दैट मींस अल्टीमेट आंसर यहां पर 2/3 स्क्वायर, वो ऊपर का जो हाफ पोर्शन है उसका। सो द टोटल एरिया इक्वल्स 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3 स्क्वायर यूनिट। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area bounded by the curves, find the area bounded by the curves, find the area bounded by the curves y equals to x square plus 3x plus 2, x square plus 3x plus 2, y equals to x square plus 3x by 2 whole by x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2 and y equals to 0, and y equals to 0, ठीक है। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ये इजी तो होगा नहीं, क्वेश्चन देखिए तो पता चल रहा है ना, इजी क्वेश्चन तो ये होगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, है कि नहीं। तो
यहां पर देखो ये जो कार्व दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइज एक्स प्लस 2, यहां पर दोनों को हम लोग नीचे भी डिनोमिनेटर पार्ट में भी एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। एक काम करते हैं यहां पर दोनों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा देखो तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से देखो यहां पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स प्लस 2। So that means y equals to x plus 2 x plus 1, और यहां पर x minus 1 x minus 2 ये होता है कि नहीं। अच्छा, ये जो y equals to ये जो चीज दिखाई दे रहा है, ये y का वैल्यू अनडिफाइंड कब होता है? दैट मीन्स x का वैल्यू यहां पर क्या पुट करने से ये y का वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ रहा है। यहां पर देखो x अगर मैं 1 पुट करूं 0, y का वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स x का वैल्यू कभी मैं 1 पुट नहीं कर सकता। दैट मीन्स x का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 2 अगर मैं पुट करूं, यहां पर भी सेम केस 2 माइनस 2 0, दैट मीन्स y का वैल्यू भी अनडिफाइंड आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू 2 भी हम लोग पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये जो कार्व तुम ड्रॉ करोगे ना, वो कार्व कभी भी x इक्वल्स टू 1 में टच नहीं करेगा और x इक्वल्स टू 2 में भी टच नहीं करेगा। रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या क्या आएगा यहां पर देखो इसका इस केस के लिए x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -2। x का वैल्यू ये दोनों हो सकता है, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -2 हो सकता है, क्योंकि y का वैल्यू 0 तो यहां पर निकल ही सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, -2 और x का वैल्यू -1। दैट मीन्स जब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तब y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तब y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ये जो कार्व है वो कार्व x एक्सिस से पास करेगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, x एक्सिस से पास कर रहा है। जब वो x एक्सिस को टच करेगा, किसी भी जगह टच करेगा, वहां पर ही तो y का वैल्यू 0 होता है। और किसी भी जगह y का वैल्यू 0 होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही जो है y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है कि नहीं। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, बट y कोऑर्डिनेट 0 जो है वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही होता है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू -2 और -1 पुट करने से y का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1 में ये कार्व जो है, ये गिवन कार्व जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। कैसे समझ में आया, बिकॉज यहां पर y का वैल्यू 0 निकल रहा है। ठीक है, हो गया। फिर अच्छा, यहां पर देखो x का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर, ये तो y है ना, एक काम करते हैं, थोड़ा यहां पर चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर सपोज x का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता है, बट 1 से छोटा 1 से ग्रेटर तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। तो अगर मैं 1 से छोटा वैल्यू लूं x का है, तो ये जो fx दिया गया है, ये इसका वैल्यू जो है क्या आ रहा है वो थोड़ा चेक करते हैं हम लोग। 1 से छोटा, दैट मीन्स 1 से छोटा केस, 1 से छोटा 1 माइनस चूज करना है। और fx यहाँ पर क्या है, fx तो यहाँ पर लिख लो, ये जो है x प्लस 2, फिर x प्लस 1, फिर x माइनस 1, फिर x माइनस 2। ठीक है। अच्छा, जितना मैं यहाँ पर, तुम आंसर निकाल सकते हो यहाँ से, है। अगर यहाँ पर मैं आंसर निकालू, देखो इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 है कि नहीं। तो h टेंड्स टू 0 अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पर x के जगह 1 माइनस h पुट होगा, 1 माइनस h प्लस 2, फिर 1 माइनस h प्लस 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1, और यहाँ पर 1 माइनस h माइनस 2। इट मीन्स लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 1 कैंसिल, तो यहां पर होगा देखो 3 माइनस h, यहां पर होगा 2 माइनस h बाई माइनस h, और यहां पर ये होगा -1 माइनस h, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर अगर माइनस अगर कॉमन लू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h 2 माइनस h बाई, अगर मैं माइनस कॉमन लू h इंटू 1 माइनस h, अगर मैं यहां पर h का वैल्यू 0 अभी पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये 3 माइनस 0 पॉजिटिव, 3 माइनस 0 पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो है अनडिफाइंड तो आएगा, h का वैल्यू 0 पुट करने से अनडिफाइंड तो आएगा, बट प्लस इंफिनिटी आएगा या फिर माइनस इंफिनिटी आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा, क्योंकि हर जगह देखो प्लस 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 वैल्यू आ रहा है ना, प्लस वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी अगर मैं सपोज दैट मीन जब मैं x का वैल्यू 1 से छोटा लूंगा तब ये प्लस इंफिनिटी तक टेंड्स करेगा, ये fx का वैल्यू। जब मैं 1 प्लस लू तो 1 प्लस होने से ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस h, ये हो जाएगा 2 प्लस h, यहां पर ये हो जाएगा प्लस, यहां पर ये -1 प्लस h। अब अगर मैं यहां पर h का वैल्यू 0 पुट करूं, h का वैल्यू 0 पुट करो तो फिर देखो यहां पर 0, ये एक माइनस साइन सामने आ रहा है कि नहीं, एक माइनस साइन नीचे आ रहा है ना, एक नीचे देखो माइनस साइन आ रहा है कि नहीं, दैट मीन्स ये क्या प्लस इंफिनिटी होगा या फिर माइनस इंफिनिटी होगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि सामने एक माइनस साइन रहेगा, है कि नहीं, सामने माइनस साइन रहेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है। तुम ग्राफ ड्रॉ करके भी x का वैल्यू जो है 1 से छोटा 1 से ग्रेटर चूज करके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर जाओ 2 माइनस 2 प्लस, यहां पर तो दो ही केस है, नॉट इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू 2, अब 2 प्लस 2 माइनस में आओ तो 2 प्लस 2 माइनस, तो दैट मीन्स 1 माइनस के लिए क्या आया था, प्लस इंफिनिटी आया था, 1 प्लस के लिए क्या आया है, माइनस इंफिनिटी आया है, तो अब 2 प्लस के लिए आओ, 2 प्लस होने से तो क्या होता है, यहां पर 2 प्लस h होगा, यहां पर 2 प्लस h होगा, यहां पर भी 2 प्लस h होगा, और यहां पर 2 प्लस h होगा, है कि नहीं। तो 2 प्लस होने से देखो, 2 प्लस होने से क्या होता है, 2 प्लस होने से ये तो सब पॉजिटिव है, यहां पर भी h का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, यहां पर 2 माइनस 1 1 आ रहा है, और यहां पर भी देखो आ रहा है एक ही, ठीक है, तो दैट मीन्स ये प्लस इंफिनिटी आएगा, 2 प्लस होने से प्लस इंफिनिटी आएगा, है कि नहीं। देखो तो 2 प्लस होने से ये 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, 2 माइनस 1 तो प्लस 1 आ रहा है, तो यहां पर तो सब पॉजिटिव ही आ रहा है ना, दैट मीन्स ये प्लस इंफिनिटी तक टेंड्स करेगा, प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स 2 प्लस के लिए प्लस इंफिनिटी। 2 माइनस के लिए देखो, 2 माइनस के लिए, 2 माइनस के लिए देखो 2 माइनस h, 2 माइनस h, 2 माइनस h, 2 माइनस h, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 माइनस h होगा, 1 माइनस h होगा, माइनस होगा, देखो यहां पर h के सामने एक माइनस आ गया, h के सामने क्या आ गया, माइनस आ गया एक, देखो, है कि नहीं, दैट मीन्स ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा, दैट मीन्स 2 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी हो रहा है कि नहीं। 2 प्लस के लिए प्लस इंफिनिटी और 2 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी हो रहा है। अब जो है थोड़ा अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, ये साइड में जो है ये सब आप लिख के रखोगे, ये करके भी दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा मतलब आपको तो लिखना ही है, ये सब तो नहीं जानेंगे तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि बिकॉज दिस इज द इरेगुलर कार तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही आपको कार ड्रॉ करना पड़ेगा, इरेगुलर कार से ये ऐसा होता है। ये तो श्योर है कि ये जो कार्व है वो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2 में वो इंटरसेक्ट करेगा, ये तो श्योर है कि नहीं। अच्छा, अब जो है
सपोज यहां पर x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, ये जो कार्व है x का वैल्यू 0 पुट करूं, 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 दैट मीन्स 2, यहां पर भी 0 माइनस 1 दैट इज -1, 0 माइनस 2 दैट मीन्स -2, -2 माइनस 1 2 ही होता है, 2 कैंसिल, y का वैल्यू 1 निकलता है ना। दैट मीन्स ये जो कार्व है वो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ही मैं x का यहां पर डिफरेंट वैल्यूज चूज करता रहूंगा, y का वैल्यू भी डिफरेंट आता रहेगा, बट यहां पर कंडीशन ये है जितना तुम यहां पर सपोज ये जो लाइन है, ये सपोज ये कौन सा लाइन है, x इक्वल्स टू 1, ये जो लाइन है दूसरा एक लाइन लिया, x इक्वल्स टू 2 लिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो जितना तुम 1 से छोटा, दैट मीन्स इस गैप में 1 से छोटा जब तुम x का वैल्यूज लोगे तब ये जो कार्व है किस तरफ टेंड्स करेगा, प्लस इंफिनिटी तक या फिर माइनस इंफिनिटी तक। 1 से छोटा केस के लिए प्लस इंफिनिटी तक टेंड्स करेगा। दैट मीन्स ये जो है ऐसा तो होगा ही, है कि नहीं, बट यहां पर ये जो है ऐसा चलता रहेगा। देखो प्लस इंफिनिटी तक टेंड्स करेगा, अप्रोक्स ऐसे ही फिगर आएगा। ठीक है, और ये जो है इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू -2 से छोटा चूज करो, कोई भी चूज करो, -2 से छोटा तुम चूज करते रहो। यहां पर -2 से छोटा -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसे चूज करते रहो। y का वैल्यू कभी भी यहां पर और 1 होगा। y का वैल्यू जो है -2 से तुम कोई भी छोटा कोई भी वैल्यू पुट करो, यहां पर -2, -3, -4 माइनस पुट करते रहो। देखो यहां पर कभी भी 1 होगा। बोलो यहां पर x का वैल्यू जब 0 होता है तभी y का वैल्यू 1 निकलता है कि नहीं। तो 0 के अलावा x का वैल्यू तो 1 तो यहां पर नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो दैट मीन्स यहां पर जितना भी तुम x का वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये जो है ऐसे जो है ये फिगर जो है वो चलता ही रहेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएगा, कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 आ रहा है कब, जब x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, हाईएस्ट वैल्यू 1। तो x का वैल्यू आप 0 से छोटा चूज करो तो 1 कहां से आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स कार्व जो है, तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये देखो शेडेड पोर्शन आ गया, इसके एरिया निकालना है। दैट मीन्स देखो ये एक नाम दे देते हैं A B C। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्या बोलते हो। ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस ये, ठीक है। हो गया। फिर तो यहां पर जो है और कुछ तो जरूरत नहीं है, यहां पर तो सिर्फ यही चाहिए मुझे, है। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो, सो द एरिया ऑफ ए बी सी, तो -2 to -1, ये देखो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ शेडेड पोर्शन जो है वो टच किया गया है, बट नेगेटिव साइड में आ गया ना वाई का, देखो नीचे की तरफ आ गया, देखो वाई का नेगेटिव साइड में आ गया ना। तो दैट मींस यहां पर क्या मैंने बोला था, माइनस साइन आपको देना पड़ेगा। दैट मींस x² + 3x + 2 बाई x² - 3x + 2 dx। दैट मींस यहाँ पर माइनस साइन में आ जाएगा, -2 to -1 x² + 3x + 2 बाई x² - 3x + 2 dx। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, -2 to -1। एक काम करते हैं, x², ये जो +3x है उसको तोड़ के देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -3x + 2 + 6x
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सो अगर मैं पार्ट करूंगा, माइनस साइन तो है, -2 to -1, देखो ये बाई ये, आंसर तो 1 हो गया, 1 dx है कि नहीं? फिर बीच में किया साइन, प्लस साइन है कि नहीं? -2 to -1, 6x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, ये वाला तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए ये। कैसे करना है इसको? इंटीग्रेशन याद है? याद है कि नहीं इंटीग्रेशन? देखो याद है कि नहीं इंटीग्रेशन? तो ये तो माइनस साइन तो बाहर है, x हो जाएगा, और ये -2 to -1, फिर प्लस 6x है ना? तो एक काम करते हैं, 6 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, -2 to -1 तो है ही। नीचे का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स माने 2x माइनस 3, तो एक काम करते हैं, नीचे एक 2 लाते हैं, ऊपर एक 2x ले लेते हैं, इधर -3 प्लस 3 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है? सो दैट मीन्स माइनस, ये हो जाएगा -1, फिर माइनस ऑफ प्लस 2 प्लस 3, यहां पर ये हो जाएगा -2 to -1, 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस -2 to -1, 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, है कि नहीं? तो बस यहाँ पर माइनस तो है, यहाँ पर ये 1 हो गया, प्लस 3, वहां पर या तो ये क्या होगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, दैट मींस log mod z है, log z, और यहाँ पर -2 to -1, और ये तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है आपको। ये लास्ट जो इंटीग्रेशन है उसको तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है कि नहीं? तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर 3 बाहर ले लो, -2 to -1 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर देन प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज मारो, फिर -1 प्लस 3 log z के जगह में ये बिठा दो, log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है कि नहीं? लिमिट क्या है? -1 to -2। यहां पर ये जो है इसको क्या करेंगे, ये +3 -2 to -1 dx बाई एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ओके, फिर -9/4 प्लस 2, -9/4 प्लस 2, ठीक है? तो इसका करो है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। अब मेन एडवांस देने के लिए जाओगे तो ये सब तो क्वेश्चंस, ये कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये -1 प्लस 3 -1 to -2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 -1 to -2 प्लस 3 -2 to -1 dx बाई x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये माइनस कॉमन लेके यहाँ पर माइनस दे देते हैं, तो शायद यहाँ पर 1/4 आएगा, दैट मीन्स -1/2 होल स्क्वायर, बस, ठीक है? हो गया? बस अब तो लिमिट पुट करना है, और यहाँ पर लास्ट वाला जो है उसको ये करना है, log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये होगा -1 to -2 और 3
इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाई एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ट्वाइस ए लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। इट मीन्स 1 बाई ट्वाइस ए लॉग मॉड x माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ठीक है नी, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो बस इसमें भी लिमिट क्या है, -2 to -1। तो करो कैलकुलेशन, उसका कंप्लीट करो, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं, ठीक है, कंप्लीट करो उसको, आ जाएगा आंसर फाइनली। यहां पर तो सिर्फ अभी लिमिट बिठाना है, करके देखो कितना आ रहा है आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, आ गया, हो जाएगा ये, ठीक है, आप लोग करिए, ठीक है। फिर आओ, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curves. Find the area of the region bounded by the curves. Find the area of the region. Find the area of the region bounded by the curves. क्या है, रूट मॉड एक्स प्लस रूट मॉड वाई इक्वल्स टू रूट ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस टाइप का कार्व है यार, इसका तो ये ठीक है, ये वेल नोन है, बट व्हाट टाइप ऑफ कार्व इट इज, थोड़ा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये तो सर्कल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसका रेडियस ये जो पार्ट है वो ए होगा, दैट मींस ये जो पॉइंट है वो a, 0 होगा, है कि नहीं। तो यहां पर मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू ए, मोड दे दो, इसका ये जो कार्व है ये किस टाइप का, कैसा बनता है कार्व, ये एक स्क्वायर का कार्व होता है, इसका जो है ऐसा होता है फिगर, ठीक है, याद रखना उसको, ऐसा होता है, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस हर जगह यही होता है, ठीक है, यही होगा डिस्टेंस, ठीक है, इसका कार्व ये होता है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसके ऊपर रूट दे दूं, हर जगह देखो रूट दे दूं, हर जगह क्या है, रूट है, तो ये रूट होने से यहां पर x का वैल्यू सपोज मैंने पहले 2 चूज किया था, है कि नहीं, मॉड के लिए +2 -2 आ गया, तो इसलिए +2 के लिए ये आ गया, -2 के लिए ये आ गया, इसलिए इस टाइप का फिगर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर सपोज पहले x का वैल्यू 2 चूज किया था, अब रूट आ गया, √2, अच्छा √2 क्या, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, √2 का वैल्यू क्या 2 से ज्यादा होगा, √2 का वैल्यू 2 से क्या ज्यादा होगा, नहीं होगा, √2 का वैल्यू तो 2 से कम है, दैट मींस ऐसे ही y का वैल्यू भी अगर मैं पहले 4 चूज करता, तो अब इसके ऊपर रूट आ गया, दैट मींस ये 2 हो गया, दैट मींस ये जो √x प्लस √y दिखाई दे रहा है ना, ये जो डॉटेड लाइन है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, दैट मींस इस टाइप का फिगर होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, कार्व बन जाएगा एक, कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा, ऐसे ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये जो कार्व है, ये जो कार्व दिखा डॉटेड लाइन का, ये कौन सा है, ये मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड ए का कार्व है। अब इसके ऊपर अगर तुम रूट दे दोगे, दैट मींस यहां पर एक्स और वाई का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा,
डिस्टेंस सेम रहेगा, ये एंड पॉइंट सेम रहेगा, बट थोड़ा ऐसे खींच लिए तुम, तो यहां पर सपोज ये एक तार है, यहां पर एक्स और वाई का वैल्यूज है, ये एंड पॉइंट्स तो ठीक है। अब इसको जो है तुमने खींच के थोड़ा नीचे ऐसे खींच दिया, तो यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट एंड पॉइंट तो ये फिक्स रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम थोड़ा हम लोगों ने खींच दिया है, जिससे ये रूट एक्स और रूट वाई पैदा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, ये है आपका शेडेड पोर्शन, बाउंडेड का ये बाउंडेड पोर्शन है, ठीक है। एंड एंडिंग तो सबके लिए सेम ही है, एंडिंग तो सेम ही है सबके लिए। तो यहां पर देखो, जब हम लोग एरिया निकालेंगे इसका, जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पहले तो एक काम करते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, एक पोर्शन का, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। एक पोर्शन का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मिल जाएगा। तो एक पोर्शन का, इस पोर्शन का नाम दे दो O A B C D, है कि नहीं। दैट मींस एरिया ऑफ A C B O A, इसका एरिया कैसे निकालना है, 0 to A। पहले तो ये पूरा सर्कल का निकालना है, ये पूरा सर्कल का निकालना है कि नहीं। तो सर्कल का मतलब यहाँ पर y स्क्वायर है, दैट मींस रूट ओवर s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इससे मैं माइनस करूंगा कौन सा, 0 to a, देखो ये होता है कार्ब, तो इसमें वो रूट a माइनस रूट ये मॉड देने का यहाँ पर तो देखो जरूरत तो नहीं है शायद, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो ना। तो एरिया निकालने के लिए तो यहाँ पर लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव लेने से कुछ नहीं होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सब एक्स का वैल्यू जो है वह पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर मॉड यूज करना जरूरत नहीं होता है, सब वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, दैट मींस मॉड एक्स, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्लस माइनस जो है वो डायरेक्शन डिनोट करता है, बट लेंथ विल बी सेम, लेंथ तो सेम होता है। यहाँ पर -2 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर इसमें x का वैल्यू 2, इसमें x का वैल्यू -2। अगर ऐसा हुआ तो ये 2 और -2 में डिफरेंस क्या है, लेंथ तो 2 ही है दोनों का, बट ये -2 डिनोट क्या करता है कि x का वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस का वैल्यू दे रहा है वही, बट लेंथ तो अल्टीमेटली सेम। और एरिया निकालने के लिए जो है लेंथ ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0 to a फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, तो हम लोग यहाँ पर मॉड यूज नहीं कर सकते हैं, dx। बस अब तो क्या, अब तो नॉर्मल ये करो, और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है ये, इसका है तो फॉर्मूला ये है x/2 रूट ओवर s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला 0 to a तो है ही। और यहाँ पर ये जो है ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, रूट a तो कांस्टेंट बाहर, और x ये तो 0 to a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस रूट एक्स डी, दैट मींस x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 होल, ये होगा, ये लिमिट होगा 0 to, तो बस सब लिमिट बिठा, सबका लिमिट बिठा दो, आंसर निकल जाएगा है कि नहीं निकल जाएगा ना आंसर। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब, बहुत है ना कॉन्सेप्चुअल। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेसिक तो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग ये टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए जितना हो सके, जस्ट ट्राई टू एक्चुअली ट्राई टू बिल्ड a very strong base regarding any chapter, regarding any topic, okay. And I think after that you will be able to face the entrance and JEE entrance exams, okay. So यहाँ पर find the area of the bounded region, find the area of the region bounded by the curves,
find the area of the region bounded by y equals to 1 by root 1 by x minus 1 whole square plus 1 y and x axis ठीक है। तो ये भी देखो एक इरेगुलर कार्ब्स होता है, तो इरेगुलर कार्ब उसका तो कोई ना मतलब ठिकाना नहीं रहता है ना किस टाइप का ये फिगर होगा। तो हम लोग को ये उटपटांग यहाँ पर ये जो है थिंकिंग जो है वो करना है। यहाँ पर x का वैल्यू, पहले मुझे ये बोलो x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी तुम ले लो, x का वैल्यू यहाँ पर एनीथिंग यू कैन चूज फ्रॉम द रियल नंबर ऑलवेज। तो इफ यू चूज x इक्वल्स टू कोई भी चूज करना है, कोई भी यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर चूज करो, y का वैल्यू कभी 0 होगा यहाँ पर, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी तुम पुट कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर पुट करो, y का वैल्यू जो है वो कभी 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि +1 है ना, कभी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स ये कार्ब जो है कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज जब भी वो x एक्सिस को टच करेगा तभी तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो y इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं आएगा। x का वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 तो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू मन में जो है तुम पुट कर सकते हो, y का वैल्यू 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स वो x एक्सिस को टच करके बिना ऐसे ही x एक्सिस के साथ चलता रहेगा। फिर x का वैल्यू सपोज ओरिजिन में देखते हैं, x का वैल्यू सपोज यहाँ पर 0 पुट करते हैं, इस साइड में भी तो ये चलता रहेगा, कभी y x एक्सिस को टच नहीं करेगा। इधर भी यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, वो ऐसे ही चलता रहेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आएगा मिडिल में ओरिजिन का पार्ट। ओरिजिन में तो x का वैल्यू 0 होता है। x का वैल्यू 0 होने से क्या होता है, 0 1 x का वैल्यू 0 होने से क्या होता है, 0 ये 1 हाफ होता है। दैट मींस x का वैल्यू 0 होने से हाफ होता है। वेरी गुड। x का वैल्यू 0 होने से क्या होता है, y का वैल्यू हाफ होता है। दैट मींस 0 और हाफ। अच्छा यहाँ पर सपोज x का वैल्यू सपोज मैं 1 चूज कर रहा हूं, x का वैल्यू सपोज 1, अगर मैं x का वैल्यू सपोज 1 चूज कर रहा हूं, y का वैल्यू क्या निकलता है, x का वैल्यू 1 चूज कर रहा हूं, 1 अगर मैं चूज करूं x का वैल्यू, तो यहां पर y का वैल्यू क्या निकलता है, 1 निकलता है ना। देखो तो 1 पुट करने से 1 - 1 तो 0 है नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा, x का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा, तब इसका आंसर जो है, y का जो आंसर है वो मैक्सिमम आएगा कि नहीं। जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तब यहां पर y का वैल्यू 1 निकल रहा है। दैट मीन्स ये जो कार्व तुम्हें दिखाई दे रहा है y इक्वल्स टू, y का वैल्यू भी मैक्सिमम ही आएगा। अब x का वैल्यू 1 के अलावा तुम कुछ भी यहां पर पुट करो, फ्रैक्शन आएगा ना। x का वैल्यू यहां पर 1 के अलावा तुम कुछ भी पुट करो, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन आएगा दैट मींस वो 1 से छोटा ही होगा। तो दैट मींस y का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, x का वैल्यू जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तभी y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, और जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो दैट मींस यहां पर देखो तो यहां पर सपोज ये एक इमेजिनरी y एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो 1,1 होता है। दैट मींस x का वैल्यू जब 1 होता है y का वैल्यू भी 1 होगा। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसमें जो है y का वैल्यू मैक्सिमम है। दैट मींस अब कोई भी वैल्यू पुट करो वो कभी भी छोटा ही होगा 1 से। दैट मींस ऐसा चलता रहेगा फिगर, है कि नहीं। यहां पर भी ऐसा ही चलता रहेगा, है कि नहीं। सिर्फ इस पोर्शन में ही y का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और बाकी सब में तो 1 से छोटा ही आएगा, फ्रैक्शन आएगा ना y का वैल्यू। दैट मींस ये हाइट जो है ये क्या y का वैल्यू नहीं है क्या, है? ये जो ये हाइट दिखाई दे रहा है, ये हाइट,
ये सब y का वैल्यूज है ना, तो दैट मीन्स सिर्फ x का वैल्यू 1 होने से ही y का वैल्यू सबसे लंबा आएगा, सबसे मैक्सिमम आएगा, और अदर देन दैट all the values of y will be the minimum values and will be less than 1, just like that. Okay, so that means this point is what 1,0. ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया हम लोग को निकालना है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस पोर्शन का निकाल लेते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मिल जाएगा। एक ही तो बात है, 1 से लेके इधर तक, 1 से लेके इधर तक। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? सो एरिया इज 1 से लेके शुरू करके कहां तक जा रहेगा? इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी तक चूज कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। बस अब बिठा दो यहां पर, तो 1/a tan इनवर्स x by a, लिमिट है 1 to infinity। दैट मीन्स tan इनवर्स, यहां पर x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने से तो पूरा इन्फिनिटी आ जाता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स -1 है कि नहीं? ना 1 पुट करने से तो 0 आ जाता है, 0 1 पुट करने से क्या होता है? लोएस्ट लिमिट 1 - 1 0 आ जाता है। तो दैट मीन्स tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? π/2 होता है। तो इस पोर्शन के एरिया π/2 स्क्वायर यूनिट, तो दोनों का मिला के टोटल एरिया क्या होगा? सो द टोटल एरिया is 2 into π/2, that is pi square। ठीक है, 1 से लेके इधर तक प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेके इधर तक माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एरिया तो सेम ही होगा ना, इस पोर्शन का एरिया जो इस पोर्शन का एरिया भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किया है इस लेक्चर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देयर, एंड एक्चुअली जस्ट योर ड्यूटी इज टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम this related to these questions, which are very much related to this question from the different books, Cengage, फिर Arihant, Disha, and then this R.D. Sharma objective. These 4 books are very important. Okay, so I think you should practice this type of questions, okay, very well, and I think you will get this type of questions in the exams also, and that is very much important. Okay, so just you should solve these questions. Okay, so this type of questions, this type of irregular curves, that means actually this figure is not fixed, just you have to consider this type of process for drawing the curves and for actually for getting the concept what type of curve it is. Okay, so you have to solve this type of questions. So that means if you solve these questions, this type of questions more, your IQ will be brushed more, you will be developed more and more. Okay, so इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जा रहा है कि नहीं? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। ओके, a teacher needs the student support only. Without the students, teachers are nothing. Okay, so just I need your support. Just keep supporting me, and just so that I can provide this type of questions and this type of conveniences to you as well. Okay, thank you very much. Bye. Jai Hind.